हेलो बच्चों, संजीव सर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब मैं अगले चैप्टर पढ़ाऊँ तो आप सबको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस? India attained independence on 14th-15th August 1947। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 14th-15th अगस्त 1947 को। एंड हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर था जवाहरलाल नेहरू। एंड ही गेव अ फेमस स्पीच। उसने एक फेमस स्पीच दिया था जिसका नाम था ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये स्पीच दिया था। सेकंड क्वेश्चन है दो दो मार्क्स का, जो है व्हाट वर द challenges that India faced? So first challenges was that we shall run our country in a democratic way, and second, the government will function for the upliftment of all the people. So that were the two goals that India had. The first goal was we shall run our country in a democratic way, and government will function for the benefit of all, especially downtrodden section. So next question, why did Gandhi ji said tomorrow will be day of mourning as well as rejoicing? गांधी जी ने क्यों बोला कि कल का दिन तकलीफ भरा है और आनंद का भी दिन है? So Gandhiji said tomorrow will be day of mourning because India was going to be partitioned, and Gandhiji said tomorrow will be day of rejoicing because India was going to get independence. गांधी जी ने कहा कि टुमारो विल बी डे ऑफ मॉर्निंग। गांधी जी ने कहा कि कल का दिन मॉर्निंग का होगा because India was going to be partitioned. Gandhi ji said tomorrow will be day of rejoicing because India was getting independence. So, what were the two challenges India faced at the time of independence? The first challenge was to save the nation. पहला चैलेंज था कंट्री को सेव करना, because in India there were lots of diversity. People speak different types of language, follow different types of culture and tradition. So the challenge was to unite all these people. And second challenge was to establish democracy and to develop democratic practices among the people. And third challenge, एक extra point मैं आपको बता देता हूँ. Third challenge was to do the welfare of all the section, especially poor and downtrodden section. Especially poor and downtrodden section. Next question, from which state Amrita Pritam belong to? Amrita Pritam belong to Punjab state, and wrote uh, she wrote today I call Warisa. Dawn of Freedom was written by Faiz Ahmad Faiz. Dawn of Freedom was written by Faiz Ahmad Faiz, and he was the poet who stayed in Pakistan after partition, जो पाकिस्तान में रह गए थे after partition. Next question है, what was two nation theory? Two nation theory was proposed by Muslim League. Two nation theory को propose किया था मुस्लिम लीग ने, and according to this theory, इस theory के according India consisted of not one but two types of people, Hindu and Muslim. So there should be a separate country Pakistan for Muslim. तो देखिए टू नेशन थ्योरी, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। टू नेशन थ्योरी प्रपोज किसने किया था? मुस्लिम लीग ने। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंडिया में 2 टाइप के लोग रहते हैं, हिंदू एंड मुस्लिम। इससे सेपरेट कंट्री होना चाहिए पाकिस्तान फॉर मुस्लिम।
विच पार्टी अपोज द टू नेशन थ्योरी, कौन सी पार्टी ने टू नेशन थ्योरी को अपोज किया? तो टू नेशन थ्योरी वाज अपोज बाय कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने इसे अपोज किया था और इसे प्रपोज किया था मुस्लिम लीग ने। व्हाट वर द फोर प्रॉब्लम इंडिया फेस्ड एट द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन? चार प्रॉब्लम क्या थे जो इंडिया ने फेस किया एट द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन? पार्टीशन के प्रोसेस में चार प्रॉब्लम जो इंडिया ने फेस किया, तो पहला था कि देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया दैट कुड बी मेड पाकिस्तान। कोई सिंगल बेल्ट नहीं था मुस्लिम मेजोरिटी एरिया का जिसे पाकिस्तान बनाया जा सकता था। वन एरिया वाज इन द ईस्ट एंड अनदर वाज इन द वेस्ट। एक एरिया ईस्ट में था और दूसरा जो है वेस्ट में था। देयरफॉर इट वाज डिसाइडेड दैट, इसलिए डिसाइड किया गया था कि न्यू कंट्री पाकिस्तान वुड हैव टू टेरिटरी, नया कंट्री पाकिस्तान में दो टेरिटरी होगा, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट, एंड विल बी डिवाइडेड बाय अ लॉन्ग स्पेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी, और इंडिया की टेरिटरी उसको डिवाइड करेगा। तो दे फोर पाकिस्तान वुड हैव टू टेरिटरी, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। Second point, all the Muslim majority area did not want to be the part of Pakistan. सारे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया जो है पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहते थे, जैसे कि खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, ही वाज आल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। 1 मार्क्स में आ सकता है, who was known as Frontier Gandhi. तो खान अब्दुल गफ्फार खान was known as Frontier Gandhi. He opposed the two nation theory. उसने टू नेशन थ्योरी को अपोज किया, लेकिन इसकी आवाज को क्या कर दिया गया था? इग्नोर कर दिया गया था। एंड NWFP वाज मर्ज विद पाकिस्तान, और NWFP फुल फॉर्म है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसे मर्ज कर दिया गया था पाकिस्तान के साथ में। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे हम कि टू मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, दो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया पंजाब एंड बंगाल हैड अ लार्ज एरिया। दो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया पंजाब और बंगाल में लार्ज एरिया थे जहां पे नॉन मुस्लिम मेजोरिटी में थे। लार्ज नंबर ऑफ पीपल डोंट नो वेदर दे विल लिव इन पाकिस्तान और इंडिया। काफी सारे लोगों को ये पता ही नहीं था कि वो इंडिया में रहेंगे और या फिर पाकिस्तान में रहेंगे। एंड द फोर्थ पॉइंट, मतलब फोर्थ पॉइंट जो है इसका है कि फोर्थ प्रॉब्लम वाज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी की प्रॉब्लम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, बॉर्डर के दोनों साइड प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी की प्रॉब्लम। लैक्स ऑफ हिंदूज एंड सिख वर लिविंग ऑन पाकिस्तान बॉर्डर साइड एंड लैक्स ऑफ मुस्लिम वर लिविंग ऑन इंडियन साइड, और लाखों संख्या में मुस्लिम रहते थे इंडिया के साइड में। तो व्हाट वर द 6 consequences ऑफ पार्टीशन? ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला पॉइंट है होगा देयर वर किलिंग एंड एट्रोसिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। काफी सारे लोग मारे गए थे बॉर्डर के तरफ से। दोनों तरफ के बहुत सारे लोग मारे गए थे। सिटीज जैसे कि लाहौर, अमृतसर और कोलकाता क्या बन गया था? कम्युनल जोन बन गया था। मुस्लिम्स वर ऑफरेड टू गो इनटू द एरिया वेयर हिंदू एंड सिख लिव। मुस्लिम्स उन एरिया में जाने से डरते थे जहाँ पे हिंदू और सिख रहते थे, एंड हिंदू एंड सिख वर ऑफरेड टू गो इनटू द एरिया वेयर मुस्लिम लिव। The minorities had to suffer, and large number of people have to left their home, and they tried to cross their border by any sort of means, by blockade, by bicycle, and even by foot. But on their way, they were attacked, killed, and raped. लार्ज नंबर ऑफ वीमेन वर एबडक्टेड। काफी संख्या में जो सफर किया था वो औरतें थी, उनको एबडक्ट कर लिया गया था। दे वर फोर्सफुली मैरिड, उनसे जबरदस्ती शादी कर ली गई थी। एंड दे वर फोर्स टू कन्वर्ट देयर रिलीजन, और उनको फोर्स किया गया था कि वो अपना रिलीजन क्या करे? कन्वर्ट करे। एंड द पीपल हु वर एबल टू क्रॉस द बॉर्डर, जिन्होंने बॉर्डर को क्रॉस कर भी लिया, दे फाउंड दैट दे हैड नो होम्स, उन्होंने पाया कि उनके पास में कोई घर नहीं है। सो दे हैव टू स्टे इन द रिफ्यूजी कैंप्स, उन्हें रिफ्यूजी कैंप्स में
रहना पड़ा। और उसके बाद में नियरली 80 लाख पीपल हैड टू माइग्रेट, लगभग 80 लाख लोग जो है माइग्रेट हुए थे। एंड 5 मिलियन पीपल, 10 लाख पीपल वर किल्ड, 10 लाख लोग जो है वो इसमें मारे गए थे। एंड देयर वर लार्ज स्केल किलिंग इन पार्टीशन। तो ये था 6 consequences जो कि पार्टीशन का है। पार्टीशन का क्या मतलब, पार्टीशन से क्या प्रॉब्लम हुई थी, तो उसके बारे में है 6 पॉइंट आपका। तो व्हाट डू यू मीन बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पारामाउंसी और सुजर्निटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन? पारामाउंसी और सुजर्निटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन से क्या समझते हैं? तो देखिए, ब्रिटिश इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक था ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस और दूसरा था प्रिंसी स्टेट्स। इंडिया दो पार्ट्स में था, एक था ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस और दूसरा था प्रिंसी स्टेट्स। प्रिंसी स्टेट्स जो है वो डायरेक्टली रूल्ड होता था किंग के द्वारा, और जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आती थी। तो प्रिंसली स्टेट्स जो थे दे एक्सेप्टेड द सुजर्निटी और सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश। तो दैट वाज नोन एज पारामाउंसी और सुजर्निटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन, जिसे पारामाउंसी और सुजर्निटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन कहा गया था। अब इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट से क्या समझते हैं? तो देखिए, देयर वर 565 प्रिंसली स्टेट, टोटल जो प्रिंसली स्टेट था वो 565 था। तो इतना ज्यादा जो प्रिंसली स्टेट्स था, तो इंटीग्रेशन का मतलब है दे हैव टू यूनाइट दीज प्रिंसली स्टेट्स अंडर द यूनियन टू टेरिटरी। इंडिया को उन्हें यूनाइट करना था इंडियन टेरिटरी में। द प्रॉब्लम, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री वाज वेरी ब्लीक। इंडिया की फ्यूचर काफी ज्यादा ब्लीक था। देयर वाज होप दैट इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पीसेस। काफी ज्यादा पीसेस में जो है वो डिवाइड हो जाएगा। पहले, सबसे पहले जो त्रावणकोर का जो रूलर था उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। फिर निजाम था हैदराबाद का, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि हम भी इंडिपेंडेंट रहेंगे। फिर नवाब था भोपाल का, उन्होंने भी ये कह दिया कि हम भी इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया जो है वो नंबर ऑफ पीसेस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द गवर्नमेंट अप्रोच इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसी स्टेट? इंडिया इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसी स्टेट में गवर्नमेंट का क्या अप्रोच था? तो सबसे पहला कि माउंट बेटन प्लान के तहत कहा गया कि इंडिया फ्री हो जाएगा। और जब कहा गया कि इंडिया फ्री हो जाएगा तो ये भी डिसाइड किया गया कि प्रिंसी स्टेट्स के ऊपर जो पारामाउंसी और सुजर्निटी है वो भी हट जाएगा, और प्रिंसी स्टेट भी क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, हु वाज इंडियाज होम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ही प्लेड इम्पोर्टेंट रोल। उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसी स्टेट। प्रिंसी स्टेट के इंटीग्रेशन में उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ही मेट विद रूलर, रूलर के साथ में मिले और नेगोशिएटेड विद देम, उनके साथ में नेगोशिएट किया और उन्हें कहा कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को साइन कर दीजिए। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन एक लीगल डॉक्यूमेंट था जिस पे साइन करने का मतलब था कि दे हैव एग्रीड टू बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। इसका मतलब को इंडियन यूनियन का पार्ट बनने के लिए तैयार है। तो बहुत सारे प्रिंसिपल स्टेट्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को साइन कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम था जूनागढ़ में, हैदराबाद में, कश्मीर में और मणिपुर में। तो यहाँ पे ये चीजें जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो गवर्नमेंट का जो अप्रोच था वो 3 कंसिडरेशन पे बेस्ड था। पहला कंसिडरेशन था कि पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसी स्टेट, ज़्यादातर जो प्रिंसी स्टेट के लोग हैं, दे वांटेड टू बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। ज़्यादातर जो प्रिंसी स्टेट के लोग हैं वो इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते हैं। और दूसरा, गवर्नमेंट वाज रेडी टू गिव फ्लेक्सिबल ऑटोनॉमी। गवर्नमेंट जो है फ्लेक्सिबल ऑटोनॉमी देने के लिए बिल्कुल तैयार था। और फिर ये एग्री किया गया कि टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ द स्टेट विल नॉट बी टच। टेरिटोरियल बाउंड्री जो स्टेट का है वो टच नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद कैसे इंडिया का पार्ट बना? तो हैदराबाद जो है वो लार्जेस्ट प्रिंसी स्टेट था। इसके रूलर का नाम था निज़ाम।
वो वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन था। वो चाहता था कि हैदराबाद को इंडिपेंडेंट स्टेटस मिले, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट के साथ में उसके नेगोशिएशंस चल रहे थे, तो उसने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, कि अभी इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन उसी बीच में हैदराबाद के अंदर में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तेलंगाना रीजन में, और निज़ाम के रूल के अगेंस्ट, तो निज़ाम ने उसको सप्रेस करने के लिए अपना पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजा जिसका नाम था राजा कार्स। तो उस पैरामिलिट्री फोर्स ने ब्रूटली तरीके से लोगों को रेप किया, लूटा और मर्डर किया, और मेनली नन हिंदू को टारगेट किया गया। आर्मी को भेजना पड़ा सिचुएशन टैकल करने के लिए, और इसी बीच में इंडियन आर्मी और निजाम का आर्मी के बीच में लड़ाई हुई, और जिस लड़ाई में इंडियन आर्मी जीत गई और फिर हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बना दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर कैसे इंडिया का पार्ट बना है। इंडिया का पार्ट मणिपुर, देखिए फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस महाराजा जो था मणिपुर का बोधाचंद सिंह, उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन किया इस एश्योरेंस पे कि इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर विल बी मेंटेन। इसी बीच में लोगों ने प्रेशर डाला तो वहां पे इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन में स्टेट कांग्रेस इलेक्शन जीत जाता है, और फिर स्टेट कांग्रेस चाहता है कि इंडिया का पार्ट बन जाए और बुद्धा चंद्र सिंह जो वहां का राजा है उसको हटा दिया जाए। तो इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट कांग्रेस के सपोर्ट से मणिपुर को इंडिया का पार्ट बना दिया गया, और महाराजा को फोर्स किया गया कि आप मर्जर एग्रीमेंट साइन कर दीजिए। तो फिर फोर्सफुली जब फोर्स किया गया और पब्लिक का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था महाराजा को, तो फिर मर्जर एग्रीमेंट साइन करना पड़ा सितंबर 1949 में, और इस तरीके से मणिपुर इंडिया का पार्ट बन गया। और इस तरीके से आज भी जो वहाँ के लोग हैं वो ये कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने फॉल प्ले किया है। What do you mean by, next question है, what do you mean by reorganization of a state? reorganization of a state से क्या समझते हैं? तो देखिए reorganization of a state का मतलब था कि बाउंड्री ड्रॉ करनी है स्टेट की ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट की बाउंड्री ड्रॉ करनी है। और ये कहा गया कि जो लोग एक तरीके की भाषा बोलते हैं वो एक स्टेट में रहेंगे। तो रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की जरूरत क्यों पड़ी? तो रिऑर्गेनाइजेशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे, बहुत सारे एरिया के लोग लैंग्वेज के बेसिस पे एक अलग स्टेट्स की डिमांड कर रहे थे। तो इस तरीके से जो एक विशालांध्रा मूवमेंट स्टार्ट किया गया, जिसे स्टार्ट किया था पोथी श्री रामुलु ने, जिन्हें वेतरन गांधी भी कहा गया था। तो पोती श्री रामुलु एक कांग्रेस लीडर थे जिन्हें वेतन गांधी भी कहा गया था। उन्होंने कहा कि अलग आंध्रा स्टेट अगर नहीं बना तो हम इंडेफिनिट फास्ट करेंगे। तो फिर इस तरीके से उन्होंने इंडेफिनिट फास्ट किया, लेकिन 56 डेज के बाद में उनकी जो है क्या हो गई, डेथ हो गई। तो उनकी डेथ की वजह से काफी ज्यादा मात्रा में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, और फिर प्राइम मिनिस्टर को सेपरेट आंध्रा स्टेट बनाना पड़ा। और फिर 19 दिसंबर 1952 में सेपरेट आंध्रा स्टेट बनाया, फिर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया जिसका काम था कि बाउंड्री को ड्रॉ करना है लैंग्वेज के बेसिस पे। फिर लैंग्वेज के बेसिस पे बाउंड्री स्टेट का ड्रॉ किया गया और बहुत सारे स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था 1953 में, और स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया था 1956 में। और जो मेन रिकमेंडेशन था स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन का वो था 14 स्टेट्स का क्रिएशन और 6 यूनियन टेरिटरीज का क्रिएशन। और इस तरीके से इन स्टेट्स का क्रिएशन हुआ। तो सबसे पहले 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को क्रिएट किया गया। बॉम्बे स्टेट से अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात क्रिएट किया गया। फिर उसके बाद में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पंजाब स्टेट से सेपरेट हुए 1966 में, और मेघालय जो है असम से अलग हुआ 1972 में। और सेम ईयर मणिपुर और त्रिपुरा ये भी सेपरेट स्टेट बन गए। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना, और नागालैंड 1963 में बना।
और 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बना, और तेलंगाना नया स्टेट बना 2 जून 2014 को। और आज भी डिमांड है विदर्भा इन महाराष्ट्र, हरित प्रदेश इन उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, और मिथिलांचल इन बिहार। थैंक यू। I have completed the chapter.